हेलो पिलाମାନେ କେମିତି ଅଛି ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ମୋ ଜଣା ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ବୀଜଗଣିତର ଚଳନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ ହେବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 9 କରିବା ଯୋଉଥିରେ ଚଳନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୌଳିକ ଧାରଣା ନେବା ସହିତ ତାପରେ ଅନୁଶୀଳନୀ 7 କରିବା। ଏଥିରେ ମୌଳିକ ଧାରଣା ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ଦେଖ ବୀଜଗଣିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସେଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ଲେଖଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢିବ 10B ରେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେଠି ବୀଜଗଣିତ ରାଶି ଯୋଉଠି ତୁମେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ର ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢିବ। ତୁମେ ବୀଜଗଣିତ କହିଲେ ମାନେ ତୁମେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଢୁଛ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରାଶି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ରାଶି ତ ରାଶି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି ରାଶି, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥିର ରାଶି। ଏବେ ରାଶି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶି ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିବି ଚଳ ରାଶି। ରାଶି କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ତମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କୁ ବୁଝେଇବି ସେଟାକୁ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଏ। ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଶି ଯୋଉ ନଉଛି ସପୋଜ ଏକ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ 3 କହିଦେବି ସେତେବେଳେ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ସ୍ଥିର ରାଶି ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଜଣା ରହିଗଲା। ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ରହିଗଲା ଯୋଉଠି ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 3 ଏବଂ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ 3 ଯେତେବେଳେ ତାହା ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ସ କୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଭଳି ନଉଛି ବା ୱାଇ କୁ ନିଅ କି ଜେଡ୍ କୁ ନିଅ, ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ବି ନେଇପାରିବ ଏ ଠାରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି, କାରଣ ତୁମେ ସେଟ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10B ଲେଖଚିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କରି ପୋକ ହେଇସାରୁଥିବନି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ର ଯଦି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କଣ ଆମେ ଯେତେ ବୀଜଗଣିତ ଆସୁ ଯେତେ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଆସୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଏ ଥାଏ ଯେ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ନିରୂପଣ କରିବା। ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା କରୁଛି ନା। ଉତ୍ପାଦିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଢା ହେଲା, ସୂଚକ ତତ୍ତ୍ୱ ପଢା ହେଲା, ସମୀକରଣ ପଢା ହଉଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଗଣିତ ପଢା ହେଲା, ଲେଖଚିତ୍ର ଯେ ପଢୁଥିବ ତ ପଢି ସାରୁଥିବ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। କାରଣ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦୁନିଆ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟାୟ ପଢି ଚାଲୁଅଛି। ମାନେ ଏକ୍ସ କୁ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ। ସେମିତି ଚଳନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ୟତମ, ସେମିତି ସମୀକରଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ, ସେମିତି ସୂଚକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଉତ୍ପାଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯାହା ବି ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ଜେଡ୍ ର ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଆମକୁ ଜଣା ନଥିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଚଳ ରାଶି ବୋଲି କହିବି, କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। କିଛି ଚଳ ମାନେ ଚଳନ୍ତା, ମାନେ 1 ବି ହେଇପାରେ, 2 ବି ହେଇପାରେ, 3 ହେଇପାରେ, -1 ହେଇପାରେ, 1/2 ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଭାଇ। ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ତ ସେଟାକୁ ଚଳ ରାଶି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସ୍ଥିର ରାଶି ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ଥିର ତ ଅଲରେଡି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଆଉ କଣ ଧରାଯିବ। ଆମେ ଆଜି ଚଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚଳ ରାଶି। ପୁଣି ଏଇ ଚଳ ରାଶିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ସଳକ ଚଳନ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୌଥ ଚଳନ। ସଳକ ଆଉ ପ୍ରତିଲୋମ ଚଳନକୁ ନେଇକି ବନୁଛି କଣ ଆମର ଯୌଥ ଚଳନ ବନୁଛି। ଯୌଥ ଚଳନ ହଉଛି ଯୋଉଟା ତୁମେ 9C ରେ ପଢିବ, ୟା ଫିର ତୁମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଥିବ। ଭାବୁଛି ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ସ୍କୁଲ ପଢାଇ ସାରିଥିବ, ତମ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ସଳକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ କରିଦବା, ଟିକେ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନବା, ତାପରେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନକୁ ଅଗ୍ରଗତି ହେବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ସାରଣୀରେ ନଡିଆର ପରିଣାମ ଦିଆଯାଇଛି, ନଡିଆର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ନଡିଆର ପରିମାଣକୁ ଏକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକେ ଭଲସେ ମୋ କଥା ଗୁଡା ଶୁଣୁଥାଅ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାଙ୍କର ଏ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ସଳକ ଚଳ 9A ର ହଉଛି ମାନେ ଟିକେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଆଉ 9A ରେ ଯାହା ଥାନ୍ତି ଖାଲି ସଳଚନ ବାଡେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର 9B ଖାଲି ଟିକେ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଦେଲେ 9B ରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉଠି ବିନ୍ଦୁ ପକେଇଲେ ସେଟା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ, 9B କରୁଛ ମାନେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ସବୁ ହବ, ତେଣୁ ବାଡି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିତର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ କଥାଟା କିଏ ପିଲା ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତି କୋଉଠି ସଳକ କୋଉଠି ପ୍ରତିଲୋମ, ଏମିତି କି ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି କୋଉଠି ସଳକ ପ୍ରତିଲୋମ ହବ। ତେଣୁ ଅକଡ ଫକଡ ବମ୍ବେଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ଜଣା ଅଛି କ୍ଲାସରେ ପଢାଯାଏ ମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ ମୌଳିକ ଧାରଣା କ୍ଲିୟର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣକୁ ଭଲସେ ପଢିବ। ବୀଜଗଣିତକ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଯୋଉ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେତେ ସବୁ ମୌଳିକ ଧାରଣା ପକଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭଲସେ ବୁଝିଲେ ତୁମେ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡାକୁ ଭଲସେ କରିପାରିବ। କୋଶ୍ଚିନ ଯୋଉଠି ବି ଆସିଲେ ବି ତୁମେ ତାକୁ କରିପାରିବ। ତ ଏଠି ନଡିଆର ପରିଣାମ ଏକ୍ସ ଦେଇଛି, ନଡିଆର ମୂଲ୍ୟ ୱାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ସେ କହୁଛି ନଡିଆର ପରିଣାମ 2 ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନଡିଆର ପରିଣାମ 16 ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନଡିଆର ପରିଣାମ 5 ମାନେ 5ଟି ନଡିଆର ପରିମାଣ ସେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ 40 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, 6ଟି ନଡିଆର ପରିମାଣ ସେତେବେଳେ ହଉଛି 48 ହଉଛି। କଥା କଣ କିଛି ଜାଣି ହଉନି।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ପିଲାମାନେ x ରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢେଇ ବଢି ଯାଉଛି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପରିମାଣ ଯେତେବେଳେ ବଢେଇ ବଢି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୋଟିସ କରୁଥିବ ବୋଧେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ କଲର ସବୁ ପରିମାଣ ଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ନା ବ୍ଲୁ କଲର ଦେଖଉଛି ନା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ପରିମାଣ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ସଂଖ୍ୟା ଟଙ୍କା ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ସେଇ ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ମାନେ ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ଆଉ କଥା କଣ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ତୁମକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛ ପୁଣି ସଳକ ଚଳନ କଥା ପାଇଁ ଚଳନ କଥା ମୁଁ ଆସିଯିବି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପଢିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ପଢୁ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁପାତ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେମିତିକି ମନେକର ଯେମିତି ମୁଁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 2/3 ଲେଖିଲି ବୁଝାଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି 2/3 ର ଏକ ଆଉ ଏକ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖ ତୁମେ ମନେ ଥିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କଣ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କର ଉପରେ ବି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କର ଯଦି ତୁ ଉପରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣୁଛ ତଳେ ବି ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ଗୁଣିଲ ତ କେତେ ଲେଖିଲ 2 ଦୁଣେ 4 3 ଦୁଣେ 6 ତାର ଅର୍ଥ କଣ 2/3 ର ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଆସିଲା 4/6 ଆଉ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଉପରେ ବା ଲବରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିଥିବ ଏବଂ ହରରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିଥିବ ସେମିତି ତମେ କହିବ ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ 3/3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ନିୟମ କଣ ଲବରେ ଯେତିକି ହରରେ ସେତିକି ତ ଏଟା କେତେ ଆସିଲା ତାହେଲେ 2 3 6 ଆସିଲା 3 3 9 ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ 2/3 ର ଆଉ ଗୋଟେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ 6/9 ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଲବରେ ଯେତିକି ବଢୁଛି ହରରେ ସେତିକି ବଢୁଛି ତାର ଅର୍ଥ କଣ ମାନେ ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ବଢୁଛି ମାନେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ତଳେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 2/3 ହେଲା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 2/3 କୁ ମୁଁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା କହିବି 2/3 କୁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଇଏ 4/6 ଆଉ ଯେ 6/9 ଯୋଉ ବାହାରିଲା ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଉପରେ ଇଏ ସବୁ ତାର ଏକ ଅନୁରୂପ ତାର ଏକ ଅନୁରୂପ ବୁଝାଗଲା ତ ସେମିତି ସଳକ ଚଳନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଏକ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ପଢିବା ଯୋଉଟା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି 1/8 ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ଲେଖା ହଉ ତାର ଏକ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବା ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ଯାଇଛି ଲବରେ ଯେତିକି ବଢା ହଉଛି ହରରେ ସେତିକି ବଢା ହଉଛି ଏଠି ବି ଲବରେ ଯେତିକି ବଢା ହେଲା ହରରେ ସେତିକି ବଢା ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମାନ ଭଗ୍ନାଂଶ ମନେକର 4/6 ହେଲା ମୁଁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବି କେମିତି ତମେ କଣ କରିବ ଆକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦିଅ ଲଘିଷ୍ଠ କରିଲେ ତମେ ଦେଖୁନ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲନି କି 2/3 ହେଇଗଲାନି ତ ସେମିତି କଣ କରିଛି ନା ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିକି 1/8 1/8 1/8 1/8 ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଲବ ଓ ହରକୁ ଦିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ହରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଏକ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରହିବ ଇଏ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 2/3 କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ ନା କାରଣ ତୁମେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ଗୁଣି ଚାଲିବ ସେତେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ମିଳିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମୂଳରେ କଣ ଅଛି 2/3 କିନ୍ତୁ ଏଠି 1/8 ନିଆଯାଇଛି ତେଣୁ 1/8 ର ମାନ କଣ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରହିବ x 1/8 କେମିତି ଆସିଲା ନା 2/16 କୁ ଆମେ ହରାଗଲା 2/16 କୁ ହରାଗଲା ମାନେ 2 କୁ ଆମେ x ନେଇଥିଲେ ଏବଂ y କୁ କଣ 16 ନେଇଥିଲେ ପିଲା ଦେଖୁନ y କୁ 16 ନିଆଯାଇଛି 2 କୁ ତେଣୁ x/y ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ କଣ ଅଛି ସ୍ଥିରଙ୍କ ରହିଲା 1/8 1/8 1/8 ତ ଏଠି ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଟିକେ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି x ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢିଲେ ସେତେବେଳେ y ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି x ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢିଲେ y ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢୁଛି x ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଲେ y ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମୁଛି କମିଲେ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖୁନ ପଛୁଆ ଚାଲିଯିବ ମନେକର 8 ଅଛି 8 ରୁ କମେଇ କଲ ନା ତୁମେ ଦିଟି ନଡିଆ କମେଇଦେଲ 2 କମେଇଦେଲ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ଟଙ୍କା ବି କମିଗଲା 64 ଥିଲା 8ଟା ବେଳକୁ 64 ଆଉ 6ଟା ବେଳକୁ 48 ଟଙ୍କା କମିଗଲା କି ନାହିଁ ତ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଅନ୍ୟଟିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିକର ହ୍ରାସ ଘଟିଲେ ଅନ୍ୟଟିର ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା x ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦି ବଢୁଛି ତାହେଲେ y ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଢୁଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ କ୍ରମରେ ବଢୁଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ବଢୁଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ x 5 ହେଇଗଲା y 6 ହେଇଯିବ ନା ଆଉ କେମିତି ବଢିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଖେଇଦେଲି କାହିଁକି ବଢିଲା ଉପରେ କାହିଁକି ତଳ ସେଇ କାହିଁକି କରାଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ସମଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ସଳକ ଚଳନର ନିୟମ ଏଇଟା ହେଲା ସଳକ ଚଳନର ନିୟମ ସେଇ କ୍ରମରେ ସେଇ ଅନୁପାତିକ ଭାବରେ ବଢିବା ଜରୁରୀ ଆଉ ସେଇ କ୍ରମରେ ବି କମିବା ଜରୁରୀ ତାପରେ ହଉଛି x ଓ y ପ୍ରକାର ଏଭଳି ଚଳନକୁ ସଳକ ଚଳନ କୁହାଗଲା ଏବଂ ସଳକ ଚଳନ ଲେଖିବା ପାଇଁ x ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ y କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ x ର ଏମିତି x ଲେଖିବ ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲିଟି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ବସେଇବ ଏବଂ ପଢିବ କେମିତି x ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଜ୍ y ଏଟା 2018 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ହେଇଥାଇପାରେ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ଆସିପାରେ ସେ ପଢିବ ଯେ x ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲିଟି y କୁ ତମ ପଢିବା ଭାଷାରେ କେମିତି ଲେଖିବ ତମ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କେମିତି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ x ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ y ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେମିତି ଲେଖିବ ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା x ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲିଟି y ହେଲେ ତ x ky ହେବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ଏ k ଟା କଣ ପିଲା ମାନେ ଏ k ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥିରାଙ୍କରେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ପାଇଲୁ ଯେତେବେଳେ x y କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରୁଛେ ଲଘିଷ୍ଠ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ମିଳିଲା ମୁଁ ଯୋଉ 1/8 ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିବ ତେଣୁ ଆକୁ କଣ କଲା 1/8 କୁ ସେ k ନେଲା
1/8 को k नेला जेतेबेले सबबेले से वैल्यूटा स्थिर रहइबो जेतेबेले से सबबेले वैल्यूटा स्थिर रहइबो पुर तुम देखि परतो x1 y1 को सर कोन ये कोन x2 y2 लिखिला पिला माने सेटा किछि नै पिला माने मु बुझाई दोउची सेटा जो एटा x नेला एटा से x1 नोची तपर एटा y1 नोची एटा को x2 नोची एटा y2 नोची कारण से आमे एटा x नेचे ना x तो एटा नै गेला xy तो एटा प्रथमे थिबारो x1 नै गेला द्वितीय थिबारो x2 नै गेला तृतीय थिबारो x3 नै गेला सेंतु y घर रे जे थिबो प्रथम घरे y1 द्वितीय घरे y2 आ तृतीय घरे y3 तार अर्थ से कोन कहूची तुमे x1 y1 तुमे लघिष्ठ करो कि x2 y2 को लघिष्ठ करो कि x3 y3 घर को लघिष्ठ करो जा भी करो वैल्यू सबबेले 1/8 रहइबो जार मूल्य सबबेले आपको k बोली निया गेला तुमे z जहा भी नै परिबो तेनु x by y को लघिष्ठ कले सबबेले जो स्थिरांक मिलिबो ताकू हमें कोन कहबा ताकू सरल चरण बोली कहबा तेनु एटा तार फार्मूला बुझाला x1 by y1 is equal to k बुझाला ताकू नै कि हमें सरल चरण करबा अनुसरणी नाइ नै तेनु पुस्तक बाहर कर दियंतु पेन बाहर कर मिसी के अभ्यास करबा तुमर भी अभ्यास हे जो एवं मिसी प्रैक्टिस करले कोन करबा ना तुमर गोटे पूरा समय मध्ये बंचिबो तुमको समय को नष्ट करी तो प्रथम क्वेश्चन हम पढ़िया शून्य स्थान पूरण कर से हो कमलार संख्या 5 देले कमला मूल्य टंका 10 देती तो सेही परि भाबरे अन्य वैल्यू हम बाहर करबा तो एतिक तुम बाहर कर सॉल्व करो गोटे मिनिट दियो लले पॉज करो तापर हमें करबा एथरा साधारण फार्मूला हम कर दबा तुमे ए जो 5/10 लिखा है कमर संख्या जो x लिखा है कमर मूल्य y लिखा तो 5/10 कर दे कारण हमें जानिछु एथरे सबले स्थिरांक आसे जतबेले तुमे x by y को करबो कारण लिखा है देखो शून्य स्थान पूरण कर जेपरि x by k को स्थिरांक अब k रो मूल्य केते देछि पिला बने 1/2 जदि एडी k रो मूल्य 1/2 जदि न भी देथान तुमे सिंधु बाहर भी करि परथान तो 5/10 देखो 5 के 5 5 गुणा 10 1/2 तार अर्थ एथरे जो स्थिर मूल्य रहइबो सेला 1/2 आ जेते सब लिखा है तार सब समभग्नांश लिखा है ठीक अछि हम से भाग करबा तुमे गोटे काम करो मूल भग्नांश रे नै जिवो एडा होला हमर मूल भग्नांश बुझाला जोटा कि स्थिरांक बोली एठी कुहा जाउची जोटा कि एठी के स्थिरांक बोली एठारे प्रस्तुत करी अछि एथिरे ए 1/2 रे देखो एठी हर अछि केते पिला माने y जगह रे केते नै 16 ताले तुमे एमति कोन करिवो ना ताले एठी गुणन चिन्ह दे दबो समभग्नांश पिला तो मन थो जेम तुमे करिथिबो एमिति एक संख्या कोजो जोटा कि 2 रे गुणिले केते होतबा दरकार 16 तो 2 रे 8 गुणिले 16 हो तो हर रे जदी 8 गुणच पिला माने तो लबर केते गुणिबो से 8 तो केते 8 के 8 तो 8/16 तो एठी आंसर गेला 8 हे गेला बुझाला पिला माने बस सेही वाला सब सेमति करिवो देखि एठी हर रे पुनी 8 देछि केते गुणिले ए 1/2 रे केते गुणले जो 1/2 दो जाके मूल भग्नांश रे लिखि दबो 1/2 रे केते गुणले मोर हर 8 हवा दरकार 2 4 8 जदी हर रे 4 गुणले लबर केते गुणबी 4 तो केते ला ताले 4 के 4 तो एठी लिखि दियो 4/8 तो से बेला तुमे सब गोटे गोटे मध्ये करि परियो पिला माने किछ असुविधा नै तापर देखो 9 देला ओठी लबर गोटे बतै दोछ ठीक लबर भी सेमति करबो ताले मूल भग्नांश लिखि दियो 1/2 गुणन केते गुणन करले मोर लब होबो 9 माने हम जानिछु 1 रे 9 गुणले 9 हबो जदी ऊपर 9 गुणुछ तळे भी केते गुणियो पिला माने 9 गुणिबो तो 2 9 केते हला 18 तो सेही बढिया भाबरे एठी मोर 18 हे गेला सेमिति सबुतरे करिवो एटा देखो 26 देइजिला बतै दोछि बुझा हला तो एटा केते होबो ताले 26 रे कहि दोछि ताले आ बाकी तो कहि दोछि 36 जो अछि पिला माने एटा तो मोर 18 कारण 18 दुगुण 36 बास 2 तो गुण 20 रे अधा कर दे केते 10 7 दुगुण तार 14 कारण सबुतरे 1/2 अछि माने ओ एपुडो आसीबो 2 गुणा जीवो आ जदी एपुडो जीवो ताले 2 हरि दबो बास एटा एपुडो आछो माने 13 दुगुण 26 13 लिखि दियो माने एटा शॉर्ट रे बताउछि न भाग करी किंतु कांसेप्ट हला एटा बताउ दोछि कांसेप्ट एटा तब स्पीड मेथड बतै दोछि जोडा कि सहज रे तुमे करि परिबो बुझाला 13 दुगुण 24 बास सिगर कर दे चलबो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देछि पिला माने चरण सूत्र प्रयोग कर निम्न प्रश्न गुड उत्तर दे किंतु हम जानिछु 9 ए रे सब गोटे कथा एठी सळक चरण व्यवहार हो आउ 9 8 कथा सेही भीतर कहउछि सळक चरण हम एठी व्यवहार करिया सूत्र तीनोटी कंचा कदर दाम 15 टका हेले 12 टी कंचा कदर दाम मूल्य केते ताको लिखिया ପାଇଁ कहउछि 25 टका रे केतोटी कदर मिलिबो हम चरण सूत्र जागा लिखिबो तो साधारणतः तुमे धारा अनुसार लिखिया पड़ियो पिला माने धारा अनुसार लिखिबो सेमति लिखियो 12 टी जो हमें जदी मन करे एठारे गोटे कंपनी निजिबो नहीं जब तीनोटी कंचा कदर नहीं पड़े तुम x1 y1 लिखियो पिलाने सेटा ते ध्यान दो तो सब बळे कारण हम जानछु चलन कोन कदर संख्या बढ़ले दाम मते पड़िबो तुम फास्ट देखिबा सळक चलन होउची कि ना हां आमे जानछि 9 एटा सळक चलन होबो कि परीक्षा तो लिखाइ नथबो ना एटा 9 ए रो आसीछि सळक चलन सूत्र प्रयोग कर बोली हमकु देखिया पड़ियो जो को चलन प्रयोग हो देखिबो कदली अछि दाम अछि आमे जानछु कदली संख्या बढ़ले दाम संख्या बढ़िबो कदली संख्या कमिले दाम संख्या कमिबो त जानि गले एटा सड़क चलन सूत्र व्यवहार होउची बुझा हला बास किछि नै पिला माने सहज सूत्र नियम प्रयोग करिवो त लिखि दो आ तुमे जदी चाहिबो डायग्राम टी बने करिया पे तुमे सारणी बने पे चाहतो सारणी बने दबो तुमे लिखि परि ऊपर कंचा कदली लिखि परिबो कंचा कदली एवं तळे तार मूल्य लिखि दबो जोडा कि तुमे तार y नियो
एटा तुम x नियो कार पके दे परिबो तापरे तीनोटी कंचा कदलीर दाम होची 15 टका तापरे से कोन पचारची 12 टी कंचा कदलीर दाम केते हबो तुम जागा रे y एटा तुम x एटा कोन x1 एटा y1 एटा x2 एटा y2 तुम लिखि परिबो साइड बुझा हला तो सेमिति आ कोन 25 टका रे केते टी कोन तळे 25 लिखि दियो एटा हबो x3 बस हे गला तुम सारणी एबे तुम से आंसर कोन करियो क्वेश्चन प्रस्तुत करिवो तले हम कोन लिखिया ताले जे x1 y1 हम लिखि परिबे जे x1 y1 is equal to x2 y2 तुम को सर x1 y1 कोटा अरे पिला माने एटा ना एटा x1 नि आइछ एटा y1 तो बुझि जीवा एटा x1 y1 एटा हो x2 y2 लेखिया कथा नै बुझि जीवा कथा सेमते हला तापर ता जरे इंप्लाय चिन्ह दे कि वैल्यू पुट कर दे x1 y1 जरे 3 15 पुट कर दियो is equal to x2 y2 जरे 12 y2 लिखि दियो तापर तुम वज्रगुणन समीकरण करि आस्तो पिला माने वज्रगुणन प्रयोग करिवो आ को सॉल्व करिवो y2 गुणन 3 करिवो वज्रगुणन सहायता रे आ एटा केमि 12 गुणन 15 कर दियो त केते हला पिला माने टिके मु ऊपर लिखुची टिके को ऊपर कर दोची टिके जहा फल जगह भी हे जो सहज रे भारी भी जीवो टिके मु केमि गार पकेतली बास हे गला एबे मु एठी लिखुची 3 गुणन y2 पिला माने बुझी गले कहीं 3 गुणन y2 हला 3 गुणन y2 होची तुम लिखि दियो 3 y2 is equal to 12 गुणन 15 गुणिबो नाही पिला माने गुणिलो आउरी टिके कोन जेतना कॉम्प्लिकेटेड हे जीवो सेमित थाउ जेमिति अछि एटे 3 गुणा जायछि 3 टेपड गुणा जायछि पड गले कोन पिला हरा आबो बस 3 हरि दियो केतेला तो 3 5 15 जोडी भी काटे तुम इच्छा 3 12 कोन आंसर तो एका भारी केते भाला 60 भाला तला हमको 12 टी कलर दाम ए y2 जगह रे मको लिभेई की लिखि दोची 60 हला ए y2 रे लिभेई की पिला 60 लिखि दोची भारी गला हमको एबे कोन करिया छी सेमति 25 सेमति से नियम प्रयोग करिवो कोन नियम प्रयोग करिवो ए x1 y1 अछि x3 y3 लिखिबी बस अगर बाकी तो लिभेई दोछ दरकार नै बुझा हला बस कोन लिखिया तले पिला माने x3 y3 वैल्यू पुट कर दियो x1 y1 जरे केते 3 15 गुणन x3 y3 केते x3 जगह हम जानि नै x3 लिखि दियो और y3 जरे 25 होला सब बेले देखो तमे चाहिले 12/60 जगह मते नै कर पर तमे जे चाहिलो जदी को सर हम एमिति नले भी हिन था कि x2 y2 करी की x3 y3 नले भी था हां हिथा किछ असुविधा नै तमे चाहिले एमिति कि नै करि परथन तमे चाहिले x1 y1 किंतु जहा भी नै ओटे संक्षिप्त आ छोटो नंबर ओटा नंबर छोटो संख्या न जा पर गुणन हरण करला ओटे सहज रे अति सहज रे भारी जिवो मु 3/15 सब छोटो 12/60 कला बेसी बड़ हे जाउ जन कर 12/60 एटा मु लेली नाही आंसर एका भारीबो किंतु टिके हमें जटिल पद्धति रे कहीं जियो पिला माने सरल पद्धति रे जे हेई परछि हमें सेटा फॉलो करिवा ना तो बस x3 वैल्यू बाहर करिवो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिवो x3 रो वैल्यू बाहर करिवो जतो बाहर केते 5 बुझा हला सॉल्व करले बाहर पते ये 25 एटा गुणी दो 25 गुणन 3 25 3 75 बुझा हला एटा गुणी दबो पुनी 15 काटी दबो तो का करले 15 5 75 तो एति ग्राम बाहर गेला तो आंसर एटा बाहर गेला तो 9 नंबर एटा हमर हे गेला ठीक अछि अब नेक्स्ट क्वेश्चन ते करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन को जने श्रमिक दैनिक मजूरी 140 टका हेले ताहार 5 दिन मजूरी केते निर्णय करो एवं 840 टका मजूरी पे केते फास्ट देखिबारे को चलन व्यवहार तो होछि सड़क चलन होछि कि तथापि माइंड रे कटिवो कारण श्रमिक दैनिक मजूरी हमें जानते से जेते अधिक दिन मजूरी करिवो सेते अधिक टका पाइबो कारण गोटे दिन मजूरी हला 140 टका जदि से 5 दिन काम कला तो से अनुसार 140 रे 5 गुणा के अधिक टका पाइबो कम दिन काम कले कम टका अधिक दिन काम कले अधिक टका तेनु जना पड़े गेला ये निहाती सड़क चलन आसु तुमे सारणी मध्य बनै परियो पिला माने तो तुमे लिखि परियो दिन संख्या श्रमिकर मजूरी तो आमे एठी फास्ट बार के तंग 5 दिन रो मजूरी केते तंग 5 दिन रो मजूरी केते फास्ट बार करियो फास्ट हम को करियो दिन संख्या लिखि दियो सेटा जे हमरो 2 नंबर बी क्वेश्चन ता करछे पिला माने तो लिखि दियो ऊपर दिन संख्या तला मजूरी हला टिके 11 सीधा कर दो हां तो प्रथमे गोटे दिन रो मजूरी केते टका पाए 140 टका पाए लिखा आइछि बुझा हला तापर से नेक्स्ट क्वेश्चन को पचारछि 5 दिन रो मजूरी केते पाइबो और ठीक अछि जोडे कि मु एटा को नउछि y2 नेक्स्ट को पचारछि 840 टका मजूरी पई से केते दिन काम करिवो 840 टका मजूरी पे मु लिखि बेड तो ऊपर x टी लिखिबी कहीं पिला माने हमें दिन संख्या x नेचे मजूरी को y नेचे तो एटा ध्यान दउथो बस सेही फार्मूला पिला माने सेही फार्मूला अप्लाई करिवो जे फास्ट हमें करिवो x सड़क चलन सूत्र अनुसार पे लिखियो आगे पूरा एटा तो धारा लिखिता ऊपर तुम लिखिवो एति दैनिक मजूरी संख्या तापर तुम सारणी बनेबो तो सड़क सूत्र प्रयोग करा गेले x1 y1 is equal to x2 by y2 ता जगह वैल्यू पुट को सब तळ तळ लिखियो पिला माने तळ तळ लिखले सुंदर देखा जाय तबरे x1 y1 केते लिखियो 1 by 140 x2 जगह केते लिखियो 5 by y2 बुझाला
y2 ର वैल्यू मूल्य बाहर करियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करियो 700 14 5 70 कारण गुणन करले केते 700 ही होची ए 700 वाला એટલે এটা তুমি অলরেডি সমীকরণ করি করি তো কই সারতু হলা সেতি লাগি মু କରୁনি जोडी कॉम्प्लिकेटेड हो सेडी मु कर देबी एटा तो देखले जणा पड़ी होची तो एटा केते हला ताले एटा मोर 700 हला तो y2 जगह मु 700 लिखि दउची तब नेक्स्ट हम करबा एटा नेक्स्ट करबा सेमति नेबा केतेडा नेबा ताले x1 by y1 x3 by y3 तो वैल्यू डी पुट कर दो ताले 1 by 140 x3 by 840 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ताले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन केते हो ताले 140 x3 840 गुणन 1 से 840 हो देखो 840 गुणन 1 से 840 होची पिला माने तो आ 1 लिखली नहीं बुझा हला तबे x3 रो वैल्यू बाहर करियो तो केते हला ताले 840 by 140 जोटा कि 6 होची बुझा हला तो x3 रो उत्तर हला केते 6 बाहरला हला तो हमरे ए परिया रे बी क्वेश्चन कर देले तबे 3 नंबर क्वेश्चन करिवा समान आकार तीनोटी मोमबत्ती दाम 24 टका 100 कोटी टका से आकार केतोटी मोमबत्ती मिलिबो तो ठीक अछि हम डायग्राम टी फर्स्ट सारणी कर दो तुम आगे लिखिबो तापर सारणी बनेबो हला मु सारणी तुम बुझिया पे सारणी बनौछि कि तुम सारणी बनियो कि ता पूर्व लिखिबो एटा सड़क चरण जना पड़ी पिला मोमबत्ती देछि तो संख्या लिखियो मोमबत्ती संख्या तापर मोमबत्ती रो दाम मोमबत्ती संख्या जोटा कि x नउछि तापर नउछि केते मोमबत्ती रो मूल्य ओके दियो केते नेबा फास्ट तीनोटी मोमबत्ती रो दाम 24 टका ऊपर साइड तुम x1 लिखि परिबो जे तुम इच्छा जदि कंफ्यूज होजो ताले ए साइड तुम लिखि परिबो जदि तुम कंफ्यूज होजो जदि नहीं तो भलो कथा तापर आ कोन बजे 120 टका रे केतोटी मिलिबो 120 टका केतोटी मिलो जोटा कि हम x2 नेबा हला एटा मोर y2 जदि जानि परछ तो भलो कथा न जानली पले साइड लिखिबो बुझाला पिला माने बस किछ नै सॉल्व कर दो सॉल्व कर उत्तर बाहर जिमा हमर तो तमे लिखिबा तेनो सड़क चलन सूत्र अनुसार तो लिखिबो ता तळे भी आउडे लिखि परिबो जदि तुमे चाहिबो जदि जे एठारे मोमबत्ती संख्या मोमबत्तीर दाम मध्य रे संपर्क सड़क चलन अंतर्भुक्त अटे और सड़क चलन रे आसु अछि मोमबत्तीर संख्या और मोमबत्तीर मूल्य सड़क चलन रे आसु अछि ठीक मु धारणा बते दोछि कारण धारणा लिखले ही मार्क मिले केवल सॉल्व तो कर देले मार्क मिलिबन पिला माने कारण तुमे धारणा लिखु तो दशम श्रेणी सहाय्य करिवो तुमको एवं मोहब्बतीर मूल्य सड़क चलन आसु अछि बुझाला तुम एटा लेखिया पे ध्यान दियो पिला माने सब सूत्र खाली सूत्र प्रयोग करी बाहर करी पळाय आछन किंतु लेखिया पे पसंद करंतिनी तुम एटा लेखिया पे ध्यान दियो एटी सिना तुमरो शिक्षक शिक्षयित्री मार्क दे देबे कि दशम श्रेणी से देबे नाही केवल करी के आसिले हो ठीक अछि देखो तबरे केन करिया पिला माने तेणु सड़क चलन सूत्र अनुसार लिखिबो सड़क चलन मु खाली तुमर खाली गोटे दीटा खंडे बते दोछि और ट्रेन टा तो फॉर्मेट थरे जानि गेला तो बाकी तुम से बडा करिवो हला आ मु सब जग तेमति लिखि परिबिनी कारण मते कॉन्सेप्ट बुझाई देबार अछि कि बाकी सब तो सेंति करिवो हला तो x1 by y1 x2 by y2 तो वैल्यू पुट कर दबो केतला 3 by 24 x2 by 120 x2 ले केते तो सॉल्व करले से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले 15 हो हला एटा हम उत्तर मिल गेला ताले 15 ठीक अछि तापर 6 टी खातार मूल्य 90 टका से आकार 15 टी खातार मूल्य केते हो 75 टका खातार मूल्य केते बोली पचाउछ ठीक अछि हम से बडा करिया पिला माने एटा मूल्य लिखि दोछि चार नंबर क्वेश्चन करछि पिला माने बुझा हला देखो तो हम लिखिबे खाता संख्या लिखिबो तापर खातार दाम एटा x नबो एटा को y लिखिबो बुझा हला पिला माने तो एटा केते 6 जगह हम x1 नउचे केते दोछि 90 तापर 15 x2 एटा होछि y2 50 चिना एटा तापर x3 एटा 75 ହେଲା y3
तो षोलह चलन भितर आसुची तो फार्मूला कौन लिखिबो x1 by y1 x2 by y2 x3 by y3 बुझा तो फास्ट हम सॉल्व करियो फास्ट हम ए दीटा सॉल्व करियो पिला माने ए दीटा हम सॉल्व करियो तो बुझाओ केते होस ताले केतेला 6 by 90 15 by y2 x3 by 75 आगे लिखि देली तापर ए दीटा हम सॉल्व करियो तो इम्प्लाइज तो y2 केतेला सेमति वज्रगुण नै करियो पिला माने वज्रगुण नै करियो तो केतेला ताले एटा हमर 15 6 काटि देले 1350 ठीक अछि 15 गुणन 90 by 6 6 करते तो केतेला ताले एटा हला 6 के तो एटा हम y2 टा 225 बाला तो ये हला 225 बुझा तो सेमिति एबे एटा सॉल्व करिवे पुनी एटा को काहा को आकु आकु भीतर सॉल्व करिवे हला आकु आकु माने 6 by 90 को आउ x3 by 75 हला तो बाकी तो ऊपर लिखि दोछि मु तो 6 by 90 x3 by 75 तो इम्प्लाइज केते हला ताले तो x3 is equal to 75 गुणन 6 by 90 तो काटिले 5 बुझाले 750 75 गुणन 6 अछि टिके देखा जोन तो पिला माने तो कंफ्यूज हो तो टिके 75 गुणन 6 काट दो भला तो 1500 90 ये 75 6 6 काटले 5 है 1590 15 75 6 6 काटले 5 हो तो एटा 5 वाला पिला माने हे गेला तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो 6 नंबर 4 नंबर गला 5 नंबर देखियो बाजार रे 2 किग्रा आलूर दाम 9 टका तेबे 5 किग्रा आलूर मूल्य केते हबो और 27 टका केते टका आलू मिलो ठीक अछि हम सारणी कर दो से अनुसार पिला तो हम लिखि दोछरा टिके तो ठीक अछि तो नेक्स्ट करियो हम 5 नंबर क्वेश्चन सेमती आलूर परिमाण किग्रा प्रति मूल्य एटा टंकार अछि टंकार लिखि परिबो टंकार तो सबले थाए तबे लिखि देबो एटा x नै जाओ एटा y नै जाओ हला तो फास्ट हमें केते करिवे 2 रे केते टका दोछि 9 जोटा कि एटा y1 एटा x1 तापर 5 रे y2 पचारिछि एटा x3 27 टका रे y3 से वाला बास करियो पिला माने सड़क चलन अनुसार लिखियो सड़क चलन अनुसार कारण आलूर परिमाण किलोग्राम प्रति मूल्य कोन आसे को चलन आसे सड़क चलन आसे तो सड़क चलन अनुसार तो केते लिखिया ताले फास्ट में कर दबे x1 by y1 x2 by y2 कंपेयर कर दबा ताले केते होचे इम्प्लाइज तो 2 by 9 5 by y2 तो y by 2 केते y2 केते होस ताले प्लस मल्टीप्लाई केते 945 by 2 एटा कटुनी 22 50 होची 22 50 टंका बुझा हला तो सेमिति आउट करिवा तो सेमिति आउट पुनः कंपेयर कर दो टी पिला माने उतरे सेमिति x1 by y1 x3 by y3 तो 2 by 9 x3 y3 जगह तो 27 थिला त 27 पडो जोडा नाही सेटा तुमे से जगह रे x3 लिखिबो कि y2 जहां भी जोडा देइन त तुम लिखिबो हला से तो x3 वैल्यू करे 27 गुणा 56 ये हला 8 27 गुणन 2 बाय 9 27 54 54 9 54 ठीक है तो x3 वैल्यू 6 बाहरी गला तो टीरा हम केते बाहरी गला ताले एटी हमरा 6 बाहरी गला बुझाला तो लिखिबो 27 टका रे 6 टी 6 किलो आलू रो मिलिबो बुझाला तो 6 नंबर क्वेश्चन करे पिला माने गोटे स्कूटर 3 घंटा 100 किलोमीटर बाट जाई करे से बेगरे 8 घंटा केते बाट जीवो और से बेगरे
200 किलोमीटर बाट जो केते समय लगे तो एठा भी जते अधिक घंटा तो अधिक किलोमीटर कम घंटा कम किलोमीटर तो एठे भी जना पड़ी कि चलन हो सड़क चलन हो बास से सूत्र प्रयोग करियो तो ठीक अछि हमें तो गोटे सारणी बना दबा पिला 6 नंबर 6 नंबर में सारणी बनाउछे पिला माने तो एपरि हमने बनेबा देखो ठीक तो समय लिखि परियो समय को तुम x नहीं पारो समय को तुम x नियो एवं अतिक्रम दूरता को y नहीं ओके तो एटा 3 एटा x1 लिखि दियो ता जगह केते 120 एटा के y1 तापर 8 x2 एटा लो y2 तापर x3 एटा लो 200 बुझाल तेणु सड़क चलन सूत्र अनुसार तो लिखियो कोन हमें जहा भीतर कंपेयर करियो x1 y1 सेमते x2 by y2 तो वैल्यू लिखि दियो 3 by 120 8 by y2 तो केते हला ताले तो y2 इज इक्वल केते हला ताले 8 गुणन 120 by 3 तो 312 काटी दियो 320 ओके y2 बाहर गेला 320 सुनिए आर सुनि कंपेयर करियो पुनश्च x1 by y1 x3 by y3 तो वैल्यू लिखि दियो 3 by 120 x3 by 200 तो सेमती सॉल्व कर ले x3 वैल्यू केते बारे 600 by 120 12 5 60 5 है ना तो x3 वैल्यू केते 5 बाहर गला तो एटा 5 तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो 6 नंबर सरी गला हमर कुकुडा अंडा दर्जन हला 15 टका 6 टी अंडा दाम केते 10 टी केतोटी अंडा मिलियो ठीक अछि सड़क चलन सेन सारणी बने दो 7 नंबर अंडा संख्या मूल्य टंका रे एटा x नै जा तो y नै जा एटा बडे देकारटा से कुछ गोटे डजन अंडा माने 12 लिखियो 12 डजन जोटा कि हम x1 नेबा तो दाम केते कुछ 15 और 6 टी अंडा माने हाफ डजन कथा जोटा कि y2 देइछि आ x3 जगह केते नबो से पचार से 10 केते रे अंडा मिलिलो y3 देइछि वा एक डजन पिला जानछो तो पिला 12 टी अंडा एक डजन रे 12 टी अंडा मिले हला एक डजन हला 12 टी अंडा तो से परि हमें सॉल्व करिया ठीक देखि दबा तो केते हो ताले x1 by y1 x2 by y2 सब लिखि दबो ताले x1 6 सूत्र अनुसार लिखिबो ताले x1 by y1 is equal to x2 by y2 तो वैल्यू पुट कर दबा ताले इंप्लाई चिन्ह देखि 12 by 15 6 by y2 तो y2 is equal to केते हो ताले y2 वैल्यू बाहर करियो तो यूज 90 by 12 चिड़ुनी है 750 होचे 750 750 सिम जरा तो एडा हला 750 भारी गेला ठीक अछि से आरडा करे x3 by y3 सिम लिखियो पुनश्च का भीतर कंपेयर होची पिला माने हम फास्ट आकुआ को कंपेयर करले एबे नेक्स्ट का सहित कंपेयर करियो ताले एटा को नहीं प्रथम को तृतीय सब हम प्रथम द्वितीय तबे प्रथम तृतीय नहीं कंपेयर करू कि नहीं तुलना करी वज्रगण नहीं करियो बस सेही मेथड अत्र अलग किछ नहीं सब से गोटे मेथड सब होछ पिला माने बुझाला तो से भली हमर करियो ताले x1 by y1 x3 by y3 12 by 15 x3 by 10 x3 वाला 120 by 15 8 टका तो x3 केते मिलला 8 टी अंडा x3 8 टी अंडा तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करियो 15 किलोमीटर बस रे जिया पे 2 टका 25 पैसा भड़ा लागे तो से बस रे 80 किलोमीटर अटे जिया पे केते भड़ा लागे बोले 85 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करियो 8 नंबर सेम ते में डायग्राम बने सारणी गोटे बना देबो तापे अतिक्रम दूरता बस भड़ा x y 15 लिखियो x1 तो केते नीचे से 2 टका 25 पैसा कोची
तुम पैसा भी कन्वर्ट कर मूल्य जदि कर बेटर हम क्या 2 टा 25 कला 10 मिनट बाहर करने कष्ट हम तो 2 टा 25 पैसा को मुझे लिखिपारि 225/100 कहीं दीटा घर आगू गला 10 मिनट देख एठी गोटे गला एठी गोटे गला तो से अनुसार मुझे 2टा 0 हरली तो 100 लिखिली है कर कारण कहीं सहज बाहर करने तो सेमती 80 टकर तो 80 किलोमीटर जावाई केते बाट लगे केते टंका लगे से पचार जोटा कि y2 बाहर कर y1 आउटा x2 लिखिदब जब जानते भल कथा न जान लिखे कन्फ्यूज होती लिखिदब सैड्रे पारे तो x2/y2 बस वैल्यू पुट कर दिया कौन 15/225/100 इज इक्वल टू 80/y2 ये पूरा एटा पूराटा टिके रो मु अधिक बेसी बड़ गार टाणी टिके रो ये पूरा कहले माने ये जिनसटी बुझेबो तेणु करी जेतेबेले तुम गुणन कर y2 सहित तेणु 15 सहित मल्टीप्लाई हम 80 टा या सहित मल्टीप्लाई हम तेणु एटा ध्यान दो पिला माने तो 15/y2 इज इक्वल टू 80 गुणन 225/100 तेणु एबे कोन कला सहजरे तुम काटि परियो सुन सुन काटि परियो नले आ जति काटियो 2 4 8 काटि दियो 2 5 10 5/4 गला 5 पुना काटि दियो ऊपर तळ करी केते हला 5 20 5 5 25 बुझा माने एमती करे काटिक पारिबो सहज हे गेला तो केते हला 45 जो हे गेला एपडे 45 माने केते 5/2 इज इक्वल टू 4 गुणन 45 हला एपडे y रे 5 गुणा है सेपडे कोन हरा हम तो 4 गुणन 45/5 45/5 लिखिबो 5 9 45 काटि दियो 9 36 हला पिला मन बुझि पले केमती हला तो बास एटा को ये ब्रैकेट से गुणन कर पिला माने एटा जानि पारन कंफ्यूज हे तुम ब्रैकेट दे दिले तुम जानि पारो 80 टा 80 तो गुणा है तापर 80 गुण 225/100 कला तापर काटाकटी कर देली बस 27 17 हे गेला बुझाला वैल्यू बाहरी गेला तो बुझाला तो हम देखले तले केते वैल्यू बाउसतले तो ठीक अछि हम गुणन करे ठीक अछि पिला देखितले टिके हां तो टिके देखि दबो टिके हां तो पिला देखियो एटी 15 लिखा आइछि ध्यान दे 15 आ एठी टिके 15 लिखा आइतला एठी 15 एठी 15 लिखिस किंतु तळे 5 लिखा 15 हो गेले पिला 15 टिके हो तो हरा अब केते 15 हरा तो टिके लिभे दो तळे सहज जानि परिबो एटा लिभे दो एटा 15/2 अछि हला 15/2 4 गुणन 45 तो हरा अब केते 15 हरा अब एथिरे ताले ताले मु लिखिबि केते y2 इज इक्वल टू 4 गुणन 45 विभक्तक 15 15 3 45 4 3 12 हला तुने 15 लिखाइ देलो ठीक से मु देख पले तो 5 रो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीव गोटे स्कूटर 50 मीटर जीवा पहले 1 लिटर पेट्रोल आवश्यक करे से स्कूटर 225 किलोमीटर बाटे जो केते मीटर आवश्यक से अनुसार सड़क चलन पिला मन तो से अनुसार हम सॉल्व करिया ठीक 9 नंबर क्वेश्चन टाउ सारणी बने दो ठीक देख दो अतिक्रम दूरता लिखिबा रे किमी रे अछि डिवाइड बाय पेट्रोल परिमाण y तो 45 रे x1 लिखो 1 रे y1 225 रे x2 y2 तो सॉल्यूशन पुट कर देले x1/1 x2/y2 तो वैल्यू पुट कर दियो 45/1 225/y2 तो y2 तले केतो पिला माने 225/45 45 5 225 तो y2 वैल्यू केते 5 लीटर बाहरी गेला बुझाला तो एती देखले तले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहबो एटा लीटर अछि पिला माने लीटर लिखि परियो यदि भलो होता लीटर एटा किमी से भी गोटे इंप्रेशन बढ़े लिखिले तो नेक्स्ट देखिबा 10 नंबर करियो गोटे परिवार सप्ताह खर्च होला 1050 टका उक्त परिवार सदस्य संख्या अपरिवर्तित हेले 2009 मसिया फेब्रुआरी मासर खाइबा खर्च केते हो तले 2009 टा 2009 टा अधिक वर्ष आसी कि पिला ना अधिक वर्ष नुहे तो से अनुसार देखि ध्यान दउथो जदि अधिक वर्ष रहि जता 2008 हेतांता तले फेब्रुआरी मास तुमे 29 मास नै थांतो जेहेतु 2009 तो फेब्रुआरी मासटा अधिक वर्ष नुहे एक साधारण वर्ष तुम एटा फेब्रुआरी मास को नै 28 बोली धरा जीव तुम परीक्षा बेले बेले टिके ट्रिक क्वेश्चन पके दे कि ट्रिक क्वेश्चन हेई नाही तो हमें साधारण भाव करियो तो दिन संख्या लिखिबा तो दिन संख्या x नियो आ खाइबा खर्च केतना पिला माने y
एक सप्ताह 7 दिन हम जानिछे सप्ताह 7 दिन तो 7 दिन लिखि दियो 7 दिन 1050 कारण हमको दिन अनुसार तो कन्वर्ट कले ही बाहर करिवो जदि सप्ताह पकेबो ताले से अनुसार कंफ्यूज हे जो बाहर करिया में तो भांगी दबो टिके आ एटा के ध्यान दउथबो टिके बुझाला पिला माने म भांगिली कोथि पई ना सहज रे जाने पे मते भंगा आला तेणु करी घंटा कि मिनिट थियो तो देखिबो सुविधा अनुसार देखिबो तेणु जे डर्जन गोटे देखले पिला डर्जन थिला तापर से 6 टे अंडा पचाला तो हम डर्जन को बाहर करले हाफ डजन को 6 लिखले सेमरा सप्ताह को 7 दिन लेखा आला तेणु ए जगह तुम देखुथबो तो सेम फॉर्मूला बस एया हो खाली ए जगह टिके नोटिस करथबो ए जगह बुझाला सेटा ठीक कर देले माने तापर तुमे गाड़ी चलला तुमरा आ किछ असुविधा नहीं बस वैल्यू पुट कर दिया 7 पे 1050 28 पे y2 तो y2 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ତାହେଲେ 1050 ଗୁଣ 28 ବାଇ 7 4200 ବୁଝାହେଲା କେତେ ବାହାରିଲା ଏଟା ଆମର ବାହାରିଗଲା y2 4200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା 11 नंबर क्वेश्चन କଣ ପଚାରୁଛି 5 ଲିଟର ଖାଇବା ତେଲର ମୂଲ୍ୟ 300 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମାସକୁ 12 ଲିଟର ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଛାତ୍ର ମାସର ମାସିକ ତେଲ ବାବଦରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ବି ସଳଖ ଚରଣ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ 11 नंबर ଦେଖିଦିଅ ତେଲର ପରିମାଣ ଲେଖିଦିଅ क्वेश्चन आगे बुझिबो देखिबो से सड़क चलन होउची कि नहीं कारण आम जानचे तेलर परिमाण बढ़िले मूल्य भी बढ़िबो एटा समस्त जनाथिबो बोली भाबुची तो एला 5 x1 300 एला 12 y2 x2 एटा y1 लिखि दबो होला लिखि देला तो जानि परियो सहज रे कोन होउची x1 y1 x2 y2 implies 5 by 300 12 by y2 y2 वैल्यू बाहर कले कितने बस्ता है 3600 by 5 इक्वल टू 720 तो ये हमारा 720 बाहर गला हला तो सेम तब नेक्स्ट क्वेश्चन के 12 नंबर में 50 टी खबर कागज बिकिले जने विक्रेता 18 टका कमिशन पाती से केतोटी कागज बिकिले 54 टका कमिशन पाबे 300 टका खबर आजबे केते टका कमिशन पाबे 50 ठीक अछि एटा हमर लास्ट क्वेश्चन ताले 12 नंबर टा जेंति लिखियो खबर कागज संख्या आउडी कमिशन रो परिमाण दिए छै हमें जानछु जते से अधिक खबर कागज तो अधिक कमिशन पाइबो कमिशन पिला माने बुझ परछ पिला माने कमिशन माने खबर कागज हक राशि तुम दोउची घर द्वार मोर पेपर बिकुथो देखतो साइकिल धरि की गाड़ी आसी की पेपर वासी बांटुथिबे तो से जो खबर कागज कंपनी तक पैसा दियंती आ खालटा तो माने काम करिवे ना से माने पैसा काटो आनंती जे खबर कागज रो मूल्य नै जिवे और जे खबर कागज रो मूल्य माने जते से आसी जो मासिक खर्च आसी तुम दोट जो नियंती गोटे रसीद देखि से रसीद ताका दरमन नै तेरा से कबा से जो खबर कागज वाला को देबे जोटी से माने आनते समाज हेगला धरित्री हेगला प्रमेय हेगला आनी तो देबे से विभिन्न प्रकार खबर कागज कंपनी जोटी थिबो एवं से खबर कागज कमिशन देबे तो केता खबर कागज बांटी परछ तो अधिक बांटी तो सेते अधिक कमिशन तनो कम बांटिले कम कमिशन अधिक बांटिले अधिक कमिशन तनो एटा भी की चलन हला सड़क चलन हला तो लिखि देबो ताले एटा तुमे x लिखि दियो एटा तुमे y लिखि दियो तो 50 टी खबर कागज हला कमिशन तो 18 टका तो एटा मैं x1 लिखि दउछु एटा को लिखि दउछु y1 तापर कोन लउछि x2 एटा 50 54 टका हले केते टका कमिशन बोली 50 तो y2 देली बुझा तापर x3 कोन लगे 300 300 टी खबर कागज यदि से दबो तो अधिक से निहाती तो कमिशन अधिक होइले कमिशन तो अधिक पाइबे जणा पड़ी जिवो कि बाहर करिया हम सेम करिया तो सड़क चलन x1 by y1 x2 by y2 प्लस 50 by 18 x2 by 54 तो 18 3 54 ये x2 केते ला ताले 50 into 54 by 18 तो केते ला 150 एटा काटि देले 150 चला तो x2 वैल्यू आइला सेम देबे ए दीटा कंपेयर करथले ए दीटा कंपेयर करियो बस आउडे ई नै जिवा स्लाइड प्रोडक्ट नै जिवा एतरे करियो कंपेयर करियो हला पुनश्च कोन लिखिबा x1 by y1 x3 by y3 तो m प्लस कितना मतलब है 50 by 18 300 by y3 तो y3 वैल्यू कितना बता ले 5400 by 50 is equal to 108 तो एटा केते बता ले सॉल्व करले 108 होची तो एटा सॉल्व करले हमर 108 वाला तो से अनुसार करिवटा बुझला से अनुसार करी हमें संपूर्ण भाव 12 नंबर क्वेश्चन सरला तो पुणी हम नेक्स्ट प्रतिलोम चयन करियो एतिकरे विराम पुणी आगे नुआ देखा से बंदे भारत